مسیح یسوع کے برکت نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ کیا آپ سب لوگ خوش ہیں؟ جب بندہ خوش ہوتا ہے تو پھر زوردار تالیاں لگاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میسیج کھڑے ہو کے دیا جائے، کیونکہ یہ میسیج بہت سے لوگ سنتے ہیں دنیا کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو اچھی بات نہیں کہ بندہ بیٹھ کے میسیج دے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر کھڑے ہو کر خدا کا کلام اقدس شیئر کیا جائے۔ میرے ساتھ نکالیے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 13 باب۔ اس کی پہلی آیت سے ہم خدا کے زندگی بخش کلام کو سنیں گے۔ آپ بیٹھ جائیں بیٹھنا۔ بڑے دھیان سے سننا ہے کیونکہ یہ باتیں بڑی گہری ہیں۔ جی کون پڑھے گا؟ اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا، اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے، اور اس کے سینگوں پر 10 تاج، اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی تھی، اور پاؤں ریچھ کے سے، اور منہ ببر کا سا، اور اس اژدہا نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا۔ اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر گویا زخم کاری لگا ہوا دیکھا، مگر اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا۔ اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے پیچھے ہوئی۔ اور چونکہ اس اژدہا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا، اس لیے انہوں نے اژدہا کی پرستش کی، اور اس حیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کے مانند کون ہے، کون اس سے لڑ سکتا ہے۔ اور بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا، اور اسے 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا۔ اور اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے منہ کھولا کہ اس کے نام اور اس کے خیمہ یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکے۔ اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے، اور اسے ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا۔ اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برا کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے، جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے، اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ جس کے کان ہوں وہ سنیں۔ جس کو قید ہونے والی ہے وہ قید میں پڑے گا، جو کوئی تلوار سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ مقدسوں کے صبر اور ایمان کا یہی موقع ہے۔ پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس کے برا کے سے 2 سینگ تھے، اور اژدہا کی طرح بولتا تھا، اور یہ پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا تھا، اور زمین اور اس کے رہنے والوں سے اس پہلے حیوان کی پرستش کراتا تھا، جس کا زخم کاری اچھا ہو گیا تھا۔ اور وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا، یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ نازل کر دیتا تھا۔ اور زمین کے رہنے والوں کو ان نشانوں کے سبب سے جن کے اس حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا، اس طرح گمراہ کر دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جس حیوان کی تلوار لگی تھی اور وہ زندہ ہو گیا، اس کا بت بنا، اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا، تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی، اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرے۔ اور اس نے سب چھوٹے بڑوں، دولت مندوں اور غریبوں، آزادوں اور غلاموں کے دہنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دی، تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو، اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے، اس کا عدد 666 ہے۔ آمین۔ اب ہم خدا کے کلام اقدس میں سے آج اس عدد کے بارے میں بھی سیکھیں گے، جو کہ 666 کے تعلق سے ہے۔ سب سے پہلی بات،
यहाँ पर लिखा है कि मैंने एक हवान को कहाँ से निकलते हुए देखा है? पानी में से निकलता समंदर से। और समंदर जो है आप लोगों के ख्याल में कौन सा हो सकता है? बहुत सी उलमा का ये ख्याल है कि ये जो समंदर पानी जो कि हमें जमीन पर दिखाई देता है उस समंदर में से जो है निकलेगा, जबकि खुदा का नबी विलियम मैरियन ब्रैनम जो कि खुदा के रूह की हदायत से इस कलाम की जो वो तशरीह करता है, जो वो तफसीर करता है, जो कि वो खुद कहता है कि खुदा अपने कलाम का जो है खुद तर्जमान है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो समंदर जो है वो है क्या। मेरे साथ जरा जो आप मकाशवा 17 बाब और उसकी 15 आयत जरा देखें। ये जो समंदर से हवा निकलता है ये पानी है क्या जहां से वो हवा निकलता है? जी क्या लिखा हुआ जरा पढ़िएगा। फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे जिन पर कसबी बैठी है वो उम्मतें और लोग और कौमें और अहले ज़ुबान हैं। यानी कि ये उम्मतों और गरोहों में से हवा निकलता है। फरिश्ता इसकी वजाहत कर रहा है। फरिश्ता जो है यूहन्ना को इसके बारे में जो है वो बता रहा है कि ये हवान जो है ये लोगों में से निकलता है, लोगों के ग्रोह में से। ये उम्मतें और ग्रोह जो है जो पूरी दुनिया के अंदर है ये क्या है? पानी है। और पानी के साथ इनको तशबीह दी गई है, वो उनमें से निकलता है। और अगर हम आगे गौर करते हैं तो जिस तरह यूहन्ना उस हवान का जिक्र करता है कि उसकी शक्ल कैसी है? तेंदुए की सी, वो रीछके से है, यानी कि वो शक्लें बदलता है। कैसे वो शक्लें बदलता है? जिससे हम कहते हैं ये बंदा ऑलराउंडर है, ऐसी बात है। वो अपने आप को खादम भी बना लेते हैं। जब कोई डांस पार्टी आती है तो वहाँ पर वो डांस करना भी शुरू कर देता है। जब वो कोई गाने गाने की बारी आती है तो वो गाने गाने भी शुरू कर देता है। जब अबलीस को खुश करना होता है तो गालियाँ बकना भी वो शुरू कर देता है। यानी कि वो मिले जुले हर काम के अंदर जो है वो मसरूफ है, हर तरह की उसकी शक्लें हैं। और बाइबल के अंदर लिखा है कि शैतान जो है वो नरानी फरिश्ते का भी रूप धार लेता है। कैसे धार लेता है? वो शक्लें बदलता है। अब अगर दानियल नबी की किताब अगर हम देखें उसका 7 बाब आप पढ़े तो वहां पर वो 4 हवानों को देखता है। कितने हवानों को देखता है? 4 हवानों। वो 4 हवानों को देखता है। लेकिन यूहन्ना जो है वो एक हवान को देखता है और वो सब उसी के अंदर मिले हुए हैं। और जब ये मोहर खुलती है तो पता चलता है। मैंने हवाला बता दिया, मैं इस तरह मेरे पास टाइम नहीं है कि हम एक एक चीज़ को जो है पढ़ते रहे, क्योंकि फिर हम मैसेज को बयान करने नहीं पाएंगे। आप बाद में पढ़ लेना। दानियल की किताब उसका 7 बाब जहां पर वो 4 हवानों को देखता है। और यूहन्ना जो कि खुदा का रसूल है वो इनको एक ही जो है के अंदर चारों को देखता है, वो मिला हुआ है। और अगर हम गौर करें तो ये जो हवान है, हवान किसे कहा जाता है? जो कि बड़ा ताकतवर होता है। लेकिन ताकतवर तो खुदा भी है, याद रखें। लेकिन ये उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन ये हवान के लिए हुआ है। उसे हवान कहा गया है क्यों? कि वो लोगों के ग्रोहों में से निकला है और उसके पास बड़ी ताकत है, इख्तियार है, कुव्वत है। लेकिन यहां पर अगर हम गौर करें तो किस तरह
اس کی جو यूहन्ना जो है किस तरह फरिश्ता उसके आगे जो है वजाहत करता है। जरा पढ़िएगा पहली आयत से फिर एक दफा। जी, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ये जो 13 बाब है इस पर मैं आऊंगा, लेकिन अभी नहीं, जब दूसरे हवान पर हम आएंगे। जी, क्या लिखा हुआ है जरा पढ़िएगा। और समंदर की रेत पर जा खड़ा हुआ जी और मैंने एक हैवान को समंदर में से निकलते हुए देखा। जी, उसके 10 सींग और 7 सर थे। अब ये जो 10 सिंह है ये किस चीज की नुमाइंदगी कर रहे हैं? ये कुव्वत को ज़ाहिर करते हैं, ये ताकत को ज़ाहिर करते हैं। आगे बढ़िएगा। और 7 सर थे। 7 सर थे। याद रखें, रोम शहर जो था ये 7 पहाड़ों पर जो था आबाद था। अमेरिका के अंदर जो है अपना, जब खुदा का नबी जो है इस मैसेज को बयान करता है तो वो ये कहता है कि इसकी जो थी 13 रियासतें थी और मुकाशवा 13 बाब के अंदर इसका जिक्र आया है। और ये उस दूसरे हवान पर जाएगा जो कि मुकाशवा की किताब 13 बाब की 11 आयत पर है। अभी हम जरा पहले हवान पर गौर कर रहे हैं, क्यों कि 7 सर जो है ये 7 पहाड़ हैं जहां पर ये हवान जो है ये बैठा हुआ है। और आगे बढ़िएगा जरा। और उसकी सींगों पर 10 ताज और जी। उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए। ये बादशाहियों को भी ज़ाहिर करते हैं, ताज जो है। और ये देखें कि कुफर के नाम क्या है। यूहन्ना की अंजील अगर हम देखें उसका 10 बाब और उसकी 31 और 32 आयत पर अगर हम गौर करें तो जरा पढ़ लें बेहतर रहनुमाई के लिए। यूहन्ना की अंजील उसका 10 बाब उसकी 31 आयत और 32 आयत पर जरा गौर करें, क्योंकि यहां पर लिखा है कि वो कुफर के नामों से लिपा हुआ है। कुफर है क्या? किसी को पता है कुफर क्या है? कुफर किसे कहते हैं? पढ़िएगा पता चले। 10 बाब। जी, उसकी 31 है और 32 है। जी, क्या लिखा हुआ है? यहूदियों ने उसे संसार करने के लिए फिर पत्थर उठाए। यीशु ने जवाब दिया कि मैंने तुमको बाप की तरफ से बथेरे अच्छे काम दिखाए हैं। जी, उनमें से किस काम के सबब से मुझे संसार करते हैं? यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि अच्छे काम के सबब से नहीं, बल्कि कुफर के सबब से तुझे संसार करते हैं और इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। अब पता चले किस स्वभाव से यीशु मसीह को वो संसार करना चाहते थे। इसलिए करना चाहते थे, यही तो कुफर था कि वो कहते हैं कि तू एक इंसान होकर अपने आप को खुदा बनाता है, इसलिए तू कुफर बकता है। इस वजह से जो है हम तुझे संसार करते हैं। हालांकि वो खुद ही खुदा था। क्या था? लेकिन वो कहते थे कि ये एक इंसान है। लेकिन जब इंसान जो है अपने आप को खुदा की जगह पर ले आता है तो वो कुफर होता है। और ये कुफर के नामों से लिपा हुआ है। किस नामों से लिपा हुआ है? ये कुफर है। अगर मेरे साथ आप हवाला देखना चाहते हैं तो ये दूसरा तसनीकियों उसका 2 बाब निकाल के पढ़िएगा जरा, 3 आयत से आपको पता चले कि ये आदमी है कौन जो कि कुफर के नामों से लिपा हुआ है। किसी तरह से किसी के फरेब में ना आना, हाँ जी, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक कि पहले बरगश्तगी ना हो। ये कौन सा जमाना है जो कि बरगश्तगी का है? यही लुदीकिया का जमाना है जिसके अंदर बहुत ज्यादा बरगश्तगी पाई जा रही है। यही वो जमाना है। और खुदा का बंदा पलूस रसूल ये बात कहता है, किसी तरह किसी के फरेब में ना आना। वो फरेब देता है,
وہ چکما دیتا ہے, وہ روپ بدلتا ہے. کیسے بدلتا ہے؟ آگے, اور وہ گناہوں کا شخص وہ گناہ کا شخص کون ہے؟ یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو, آگے, جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یعنی معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے. خدا سے بھی اپنے آپ کو بڑا ٹھہرا لیتا ہے. 1439 کے اندر تاریخ اگر کوئی حوالہ لینا چاہے تو یہ جو ہے, یہ رومن کیتھولک کی جو سٹیٹمنٹ ہے, یہ بات ایک لائیو بھی چل رہی ہے اور یہ میسج ریکارڈ بھی ہو رہا ہے, وہ میں اس کو ان کی سٹیٹمنٹ سے ثابت کروں گا جو 1439 کے اندر تھی. اور خدا کا نبی جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن ایسے کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو 3 منزلہ تاج ہے یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ 3 منزلہ تاج, ایک منزل, دوسری منزل اور تیسری منزل, یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ یسوع مسیح نے کیا کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار کس کے پاس ہے؟ دوسرے تسنیکیوں کے اندر کہا جا رہا ہے وہ گناہ کا شخص, ہلاکت کا فرزند جو خدا سے اور ہر معبود سے اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ بڑا ٹھہراتا ہے. یہی تو کفر ہے. دوسرے تسنیکیوں کے اندر اس شخص کو آج پہچانے, یہ ہے کون؟ جو کہ مسیح کی جگہ پر ہے, جو مسیح خدا ہے, اور وہ خدا کی جگہ جب لیتا ہے تو وہ کفر کے ناموں سے لپا ہوا ہے. اب آگے ذرا غور کرتے ہیں جی. 3 منزلہ جو تاج ہے, خدا کا نبی ولیم برنم یہ بات کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ 3 منزلہ تاج یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار کس کے پاس ہے؟ یسوع مسیح کے پاس ہے. 1439 کے اندر جو ان کی تاریخ کی کتب ہے, جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے, اس کے اندر لکھا ہے کہ اس شخص کو آسمان کا بھی اختیار ہے, زمین کا بھی اختیار ہے, اور زمین کے نیچے کا بھی. جو اختیار کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس ہے. یسوع مسیح خود ہی خدا ہے. اب وہ خدا کی جگہ پر ہے, اس لیے مکاشوہ کی کتاب کے اندر آیا ہے کہ وہ کفر کے ناموں سے لپا ہوا ہے. یہی کفر ہے جب ایک انسان جو ہے اپنے آپ کو خدا کی جگہ پر کھڑا کر لیتا ہے, یہ کفر ہوتا ہے. اور یہاں پر دیکھتے ہیں اب یہ بات اس پر پرفیکٹ اترتی ہے کہ وہ کہاں پر ہلاکت کا فرزند کہا گیا ہے, وہ گناہ کا شخص. اور لکھا ہے کہ وہ کس طرح, نبی کہتا ہے کہ کسی طرح کسی کے فریب میں نہ آنا. اس سے پہلے کہ برگشتگی ہو وہ اس شخص کے بارے میں بتاتا ہے, یہ ہلاکت کے فرزند کے بارے میں بتاتا ہے. اب یہ اختیار جو ہے آسمان اور زمین کا یسوع مسیح کے پاس تھا. اب وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ اختیار اس کے پاس ہے. 3 منزلہ تاج اس چیز کی نمائندگی کر رہا ہے, کس چیز کی؟ آسمان کا اختیار, زمین کا اختیار, اور پھر زمین کے نیچے کا اختیار اس کے پاس ہے. وہ جس کے چاہے گناہ معاف کر سکتا ہے, وہ جس کو چاہے. گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟ وہ کیا کہتے تھے اس دور کے جو فقی فریسی تھے, وہ یہی تو یسوع مسیح پر الزام عائد کرتے تھے کہ تو انسان ہو کر کیا کرتا ہے؟ گناہ بھی صرف خدا معاف کر سکتا ہے, کوئی انسان کسی کے گناہ معاف نہیں کر سکتا سوائے رب العزت کی ذات کے. تو اب یہاں پر دیکھیں خدا جب چاہے, حوان جو ہے نا, میں نے پہلے بتایا کہ وہ بڑا طاقتور ہے, اس کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خدا چاہے تو دشمن کو بھی اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے استعمال کر لیتا ہے. جب خدا نے اپنے کلام کو پورا کرنا ہوتا ہے نا, تو آپ کو پتہ ہے, میں اس بات پر رہوں گا, مکاشوہ کی 6 باب کے
ऊपर भी आएंगे, जरा निकालें मेरे साथ ताकि आप बेहतर तौर पर इस बात के बारे में जान सके। जी जरा पढ़िएगा जी। फिर मैंने देखा कि बरा ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला जी। और उन चारों जानदारों में से एक की गर्ज की सी आवाज सुनी। अब ये गरज की जो आवाज है ये खुदा की आवाज है। गरज किसकी है? खुदा की आवाज है। यूहन्ना की इंजील के अंदर भी हमें यह बात मिलती है। लोगों ने कहा कि फरिश्तों से हम कलाम हुआ है, लेकिन कुछ लोगों ने बोला बादल गरजा है, लेकिन खुदा जो है वो उससे हम कलाम हुआ था। याद रखें जहां पर यीशु मसीह ने कहा अरे बाप अपने नाम को क्या कर जलाल दे, और फौरन बादल गरजा। ये गरज जो है, जब एक मोहर खुलती है तो गरज की आवाज पैदा होती है, और जब गरज की आवाज पैदा होती है तो फिर आगे बढ़िएगा। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है और उसके सवार कमान लिए हुए। मासूमियत, बड़ा मासूम, हम सब एक हैं। खुदा का नबी ये बात कहता है किस तरह उसने ये सवारी की है पूरी दुनिया के ऊपर। जब मोहरें खुलती है तो फिर इसको जो है वो तारीफ करा दिया जाता है कि ये शख्स कौन है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना कि 4 हवान दानियल ने देखे थे, और यहां पर 4 ही घोड़सवार हैं जो 4 रंगों के अंदर हैं। याद रखिएगा, सफेद सबसे पहले उसने अपनी तालीम से सवारी की है। किससे सवारी की है? पूरी दुनिया को फातेह किया है अपनी तालीम से। जी आगे बढ़िएगा। उससे एक ताज दिया गया और वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। उसे एक ताज दिया गया है। वो ताजदार जमीन पर एक बादशाह है। रूह को आप ताज नहीं बना सकते। रूह नजर आती है तो रूह को आप ताज भी नहीं बना सकते। पहले वो मुखालिफ मसीहा यूहन्ना के हमें खत के अंदर लिखा हुआ है, आए बच्चों किसी तरह किसी के फरेब में याद रखे। कैसे नहीं आएंगे? यूहन्ना पहले खबरदार कर रहा है। जी आगे बढ़िएगा जरा। और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे जानदार को ये कहते सुना कि आ। फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था। लाल था। अब याद रखिएगा, ये हमेशा जो है रोम ही रहा है। जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो किसकी हुकूमत थी? मकासवा की किताब 12 बाब निकाल के पढ़ लेना, वहां पर भी लिखा हुआ है जब वो बच्चा जनने को थी, जब वो बच्चा जनी तो उस अज़दहा ने क्या चाहा था? ताकि उसे निकल जाए। लेकिन याद रखिएगा, ये लाल अज़दहा है कौन? लाल अज़दहा कौन है? ये हमेशा रोम है। याद रखें, उसने उस बच्चे को मारने की बड़ी कोशिश की, लेकिन ये खुदा का मंसूबा था। उसके कानों तक ये खबर भी पहुंच चुकी थी कि जमीन पर कौन पैदा हुआ है? एक निजात दहिंदा। ऐसी बात है, अदल पैदा हुआ था। तो यह खुदा का एक प्लान था। क्या यीशु मसीह की पैदाइश कहां पर होगी? उसने अपने कलाम को भी पूरा करना था। बैतलहम में होगी। तो उसने जिस तरह देख ले, मैंने कहा खुदा जब चाहे दुश्मन की आंखों पर पट्टी बांध सकता है। खुदा ताकतवर तरीन है। याद रखे, बहुत ताकतवर। हवान के पास ताकत है, खुदा उससे भी ताकतवर है। और जब देखे कि खुदा ने पुराने अहदनामा के अंदर बादशाह ने जब एक फरमान जारी कर दिया कि जो भी इब्रानी औरतों के घरों के अंदर बच्चा पैदा हो उसको मार दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए। लेकिन क्या खुदा के मंसूबा को देखें,
खुदा ने उसी अबरानी बच्चे को उसी बादशाह के घर के अंदर बड़ा होने दिया, Amen. Yes. क्या उसे मार सके? No. वही मूसा Amen. Yes. जिसने बनी इस्राएल की रहनुमाई की, जो ने गुलामी से निकाल कर लाया, वो खुदा का चुना हुआ था, Yes. वो खुदा के चिराओं में था। Amen. तो इसी तरह खुदा जब चाहे वो इब्लीस की आंखों पर क्या कर सकता है? पट्टी बांध सकते हैं। अब लाल अजदहा याद रखें, कितने? 6 करोड़ 80 लाख लाल तलवार, याद रखें इस आह्वान को। तारीख बयान करती है कितने लोगों का कातिल है? 6 करोड़ 80 लाख Amen. Yes. लोगों को इसने तलवार से कत्ल किया है। Yes. Yes. अब इसकी तलवार लाल है। पहले ये सफेद घुड़सवार था, फिर ये लाल पर आता है, लोगों को फरेब देखता है, और फिर ये किस घोड़े पर आता है? सवाल एक ही है, ये खाली जो है रंग तब्दील कर रहा है। Yes. Yes. उसकी शक्ल कैसी थी? मकाशवा की किताब 13 बाब के अंदर हमने पढ़ा, तेंदुए की सी, पांव रीछके से मिले जुले, ऐसी बात है। Yes. जैसे मैंने कहा ना, जिस तरह बरूपिया होता है, रंग बदलता है, हर महफिल के अंदर जहां पर जाता है तो वैसे रंग बदल लेते हैं। लोग कहते हैं कि पास्टर प्रवेश जो कि मैसेज बिलीवर है, जो कि लोगों को यह तालीम देता है, जो लोग इसके साथ चलते हैं वो सिगरेट पीते हैं, वो नशा करते हैं, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा कसूर है इसमें? No. मेरा काम है कलाम सुनाना। Amen. ये बात एक बड़ी खतरनाक है, याद रखना। यीशु मसीह की जब पैदाइश हुई थी ना, तो क्या कहा था? कुछ लोगों को मुबारक कहा गया था और कुछ लोगों को क्या कहा गया था? उनके लिए ठोकर। ठोकर किनके लिए था? जो कलाम को कबूल नहीं करते, और मुबारक उनके लिए था जो निजात पाते। Yes. और यहां पर हम देख रहे हैं कि किस तरह जो है, आगे बढ़िएगा जरा हवाला। और उसके सवार को ये इख्तियार दिया गया कि जमीन पर से सुलह उठा ले, जी ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। देख ले, उसे एक बड़ी, अगर 3 रंगों को मिलाया जाए तो फिर कौन सा रंग बनता है? मौत, जर्द। याद रखें। अब आखिरी सवारी जो होती है इसकी कौन सी है? जर्द घोड़े पर यह सवार है। Amen. Yes. इसकी खोज करते चले जाएं, इसको देखते चले जाएं, ताकि आप बेहतर तौर पर इस बात के बारे में जान सकें। जी आगे बढ़िएगा जरा। और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे जानदार को ये कहते सुना कि आ, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। जी अब सुनिएगा, जरा गौर कीजिएगा मेरी बात पर। और यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा किस तरह से जो है ये मिले जुले रंगों के अंदर है। मैं नबूकदनेस्सर की तरफ नहीं जाऊंगा, जिसने 2 बाब के अंदर रोया देखी थी दानियल की किताब के अंदर। ये जो उनकी हुकूमतें थी, मादी, फारस, ठीक है, और वो पहली जो हुकूमत थी वो किसकी थी? नबूकदनेस्सर की थी, जो गैर कौम की थी, बादशाही की। अब जरा याद रखिएगा कि ये जो हवान है, ये जो मिले जुले रंगों के अंदर है, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, जरा मेरे साथ वापस आइए मकाशवा 13 बाब के अंदर, वहां पर जरा पढ़े ताकि आगे हम मजीद बढ़ सके। जी पढ़े आगे जहां से छोड़ी थी आप। और जो हेमान मैंने देखा उसकी शक्ल तैरने की सी थी जी और पाँव रीछ के से जी। और मुंह बब्बर का सा। जी। और उस अजदहा ने अपनी कुदरत और अपना तख्त और बड़ा इख्तियार उसे दे दिया। अब अजदहा देख ले, ये कौन सा है जिसकी हम बात कर रहे हैं? ये कौन सा है अजदहा?
वही इब्लीस पुराना सांप। अज़हा किसे कहा गया? ये इख्तियार किसे दे देगा? पहले स्टेप के अंदर वो मुखालिफ मसीह बना है। मैंने पहले कहा आप किसी रूह को ताज नहीं बना सकते, पहले वो मुखालिफ मसीह है। उसके बाद जब ये हवान लोगों में से निकलता है, मकाशवा 12 बाब के अंदर जब इसे जमीन पर गिरा दिया जाता है, तो ये हवान जो लोगों में से निकलता है, तो फिर यही अज़दहा अपना अख्तियार किसे पेश करता है? उसी हवान को पेश करता है, और ये उसमें मुजस्सम हो जाता है। फिर वो क्या बन जाता है जमीन पर? मुजस्सम खुदा, जैसा कि दूसरे थस्सलुनीकियों के अंदर हमने पढ़ा है कि वो खुदा की हैकल में बैठकर अपने आप को क्या करता है? खुदा जाहिर करता है। दूसरे थस्सलुनीकियों के अंदर बाद में ये हवाला पढ़ लेना, 2 बाब के अंदर ही है, ठीक है। तो अब यहां पर देखें कि किस तरह जो है, आगे बढ़िएगा जरा। और मैंने उसके सरों में से एक पर गोया जख्मकारी लगा हुआ देखा। मैंने उसके सरों पर गोया जख्मकारी लगा हुआ देखा। यह कहां पर अब बात चली गई है? याद रखिएगा, यह 312 के अंदर बात जा चुकी है। आगे बढ़िएगा। मगर उसका जख्मकारी अच्छा हो गया जी, और सारी दुनिया ताज्जुब करती हुई उस रहमान के पीछे सारी दुनिया ताज्जुब करती हुई, थोड़े सारे लोग नहीं, सारी दुनिया कहा गया है। सारी दुनिया ताज्जुब करती हुई उस हवान के पीछे ओली। क्यों उसके पीछे ओली है? सबब क्या है? वजह क्या है? जी बढ़िए आगे। और चूंकि उस अज़दहा ने अपना इख्तियार उस हैवान को दे दिया था। अब उस अज़दहा ने क्या किया है? अपना इख्तियार उसे दे दिया है जो लोगों में से निकला था। अब वो मुजस्सम हो जाता है। क्या हो जाता है? पहले वो मुखालिफ रूह थी, मुखालिफ मसीह था। बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि मुखालिफ मसीह जो है वो रूस है, कम्युनिज्म, ठीक है, वो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था। खुदा का नबी विलियम ब्रैनम इस बात की वजाहत करता है। वो कहता है वो नहीं है, बल्कि उसका तख्त कहां पर है? जैसा भी पढ़े, रोम के अंदर है, जहां पर वो बैठा है। आगे बढ़िएगा। और चूंकि उस अज़दहा ने अपना इख्तियार उस हैवान को दे दिया था, इसलिए उन्होंने अज़दहा की परस्तिश की और उस हैवान की दी। अब याद रखें, क्योंकि हर एक बदरू जो थी उसके अंदर समा जाती है। हर एक नापाक रूह का अड्डा बन जाता है। जब इब्लीस को ऊपर से जमीन पर मकाशवा 12 बाब के अंदर गिरा दिया जाता है, तो इब्लीस की हर बदरू को भी जमीन पर गिरा दिया जाता है। आगे बढ़िएगा। ये कहकर प्रस्तिश की कि इस हैवान के मानिंद कौन है? जी, कौन उससे लड़ सकता है? कौन है जो उससे लड़ सकता है? अब याद रखिएगा, जो कि जख्मकारी लगा था, जिसका मैंने जिक्र किया 312 के अंदर, ठीक है। एक कैनेस्टेरियन जो था, बादशाह था, जो कि बाद में मसीही हुआ था, ठीक है। उसने क्या किया था? उसने एक खुदा का खादम उसके पास आया और उसने कहा था अगर तूने जंग की तो तू हार जाएगा। लेकिन आगे से जवाब क्या मिला? उसने कहा नहीं, मैं ये जंग करूंगा। लेकिन जब वो जा रहा था तो खुदा ने जो है उसे इस बात का यकीन दिलाया कि तू ये जंग हार जाएगा। उसने एक रोया देखी जिसके अंदर एक सलीब का निशान था, और उसे रोया के अंदर यह बताया गया कि अगर तू जो है इसके ऊपर अपनी क्या करेगा? क्रॉस हर एक चीज के ऊपर लगा देगा। जब तू जंग के लिए जाता है, जिस तरह तोपों के ऊपर, टैंकों के ऊपर, तो फतह तेरी यकीनी है। याद रखें। उसके बाद जो कौंसिल बैठी 325 ईस्वी के अंदर, ये तारीख की बातें हैं, 325 ईस्वी के अंदर। फिर अगर हम देखें तो 19वीं सदी के अंदर
वही कादरा मतलब खुदा का मकाम, जिसे कि हम विक्र कहते हैं, किसकी जगह पर आ गया? विक्र, खुदा के बेटे की जगह पर। Amen. याद रखिएगा Yes. जी, आगे बढ़िएगा। और बड़े बोल बोलने और कुफर बकने के लिए उसे मुंह दिया गया। बड़े बोल बोलने और कुफर बकने के लिए उसे एक, ये शख्स है हवान, जिसका अदद पर अभी हम आएंगे, जिसका अदद 666 है। Amen. बड़े सारे लोगों का ख्याल है जी ये शैतान का अदद है, ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है ये इंसान का अदद है, Amen. Yes. ये आदमी का अदद है, ये हिकमत है। Yes. वही लोग इसे समझेंगे, दूसरे नहीं समझेंगे। जी, आगे बढ़िएगा। और उसे 42 महीने तक काम करने का इख्तियार जिसकी दिया। जरा गहराई पढ़े। अब हम जरा दूसरे हवान पर जरा गौर करते हैं, ये हवान क्या है। फिर मैंने एक और हैवान को जमीन में से निकलते हुए देखा। अब एक और हवान को कहां से निकलते हुए देखा है? खुश्की से। पहला हवान समंदर से निकला है, ये दूसरा हवान कौन है? किसी को पता है? ये दूसरा हवान खुदा का नबी मैरियन ब्रैनम बयान करते हैं, ये अमेरिका है, यूएसए। क्या है? जिसके 2 सींग जो कि ताकत को ज़ाहिर करते हैं, यह खुश्की में से निकला है। और आगे बढ़े, यही वो मुल्क था जिसके अंदर आजादी थी। खैर, जैसा किसी मजहब से कोई बेशक तलक रखता हो वो वहां पर रह सकता है, हर किस्म की वहां पर आजादी थी। जी, आगे बढ़िएगा। और उसके बराके से 2 सींग थे। बर्राके से बर्रा नहीं है, बर्राके से यानी कि उसका हम शक्ल बनाता है। बर्राके से 2 सींग जो कुव्वत को ज़ाहिर करते हैं, ताकत को ज़ाहिर करते हैं। आगे, और अजदहा की तरह बोलता था। अजदहा की तरह बोलता था। आगे बढ़िएगा। और ये पहले हैवान का सारा इख्तियार उसके सामने। पहला हवान कौन सा था? जो मकाशवा 13 बाब की पहली आयत के अंदर था। अब इस बात को समझिएगा, क्या कराता था? सारा इख्तियार उसके सामने काम में लाता था। सारा इख्तियार उसके सामने क्या करता था? काम में लाता था। आगे बढ़िएगा। और जमीन और उसके रहने वालों से उस पहले हैवान की प्रस्तिश कराता था। अब सुन लो, पहले हवान की जो कि मुजस्सम शैतान बन चुका था, जो जमीन पर मुजस्सम खुदा बन चुका था, उसकी प्रस्तुत करवाता था। वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि पूरी दुनिया ताज्जुब करती उस हवान के पीछे। अभी पीछे ऐसे एक मैं जरा एक बात करना चाहता हूँ। पीछे हमने सुना था जब कोरोना आया था तो बड़ी ये फाहें फैल गई थी। आपको पता है कि ये जी चिप निकल आई है, ये 666 है। कुछ लोग कहते थे कंप्यूटर के अंदर जो है ये इंसान को कंट्रोल करेंगे। ये एक लॉबी बैठी हुई है दुनिया के अंदर, ये जो कंट्रोल कर रही है। और जो कि हम इस चीज़ को देख रहे हैं, ये 2000 हो सकता है 30 तक पूरी दुनिया को कंट्रोल कर ले। इससे पहले रैप्चर का होना बहुत जरूरी है, ढाया जाना बहुत जरूरी है। और लिखा है वहां पर मकाशवा 13 बाब के अंदर कि कोई उसकी मर्जी के बगैर जो है खरीदो फरोख्त न कर सकेगा। क्यों ना कर सकेगा? जी, पढ़िएगा जरा ये हवाला 13 बाब के अंदर है मकाशवा, जहां पर वो निशान जारी करता है। और वो बड़े बड़े निशान दिखाता था, जी, यहाँ तक कि आदमियों के सामने आसमान से जमीन पर आग नाजिल कर देता था। ये तो वही है, वही वहां है जो खुश्की से निकला है। आग है क्या? क्या है? सबसे पहले जो था हाइड्रोजन बम, जो था अमेरिका के पास था, जो आसमान से आग बरसा सकता था। याद रखें, यही है वो 2 सींग जो ताकत को जाहिर करते हैं। ये जो हवान खुश्की में से निकला है, ये जब अफगानिस्तान के अंदर आए थे, ऊपर से डॉलर भी नीचे फेंकते थे, खुराक भी फेंकते थे और ऊपर से बम भी बरसाते थे। देखें, आसमान से आग को नाज़िल करना।
جی تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو. اب ذرا نام پر آ رہے ہیں ہم. جس پر اس کے نام کا عدد نہ ہو کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے گا. لوگ کہتے ہیں بائبل بدل گئی ہے. دیکھو آج جو کچھ ہوتا ہوا دنیا کے اوپر ہزاروں سال پہلے یہ بائبل لکھی جا چکی ہے اور آج ہماری آنکھوں کے سامنے یہ خدا کا کلام پورا ہوتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں. کلام یہ سچا ہے. جب ہم ان دنیا کی چیزوں کو خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں دنیا کو دیکھتے ہیں اور جب وہ کلام کو دیکھتے ہیں تو وہ ہر ایک چیز پوری ہوتا ہوا ہم خدا کے کلام کے مقدس کے مطابق دیکھتے ہیں کہ یہ کلام پورا ہو رہا ہے. کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے گا. بڑے سارے لوگوں کا یہ سوال تھا کہ یہ اب کیا ہوگا. یہ تو ہو سکتا ہے چپ لگ جائے ہمیں اور بائبل میں لکھا ہے کہ کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے گا. کیسے نہیں کر سکے گا؟ آپ ایئرپورٹ کے اوپر جاتے ہیں ایسی بات ہے وہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ نے ویکسینیشن جو ہے وہ لگوائی ہے کہ نہیں لگوائی. نہیں لگوائی پروف دکھائیں. ایسی بات ہے. پیسہ بھی اگر آپ کا ہو بینک کے اندر آپ نکلوا بھی نہیں سکتے تو آپ ان کا کنٹرول میں پیسہ بھی آپ کا ہے آپ نکلوا بھی نہیں سکتے کیونکہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی خرید و فروخت ہے. اب مجھے بتائیے گا کہ تیسری نسل کا یہاں پر کوئی ذکر نہیں ہے. بائبل کے اندر دو ہی نسلیں ہیں. ایک طرف تو لوگ جو ہے وہ خدا کے پاک روح سے جو ہے مہر بند ہیں اور دوسری طرف جو لوگ ہیں ان کے اوپر حیوان کی چھاپ ہے. یاد رکھنا جن کے اوپر خدا کی مہر ہے وہ اٹھا لیے جاتے ہیں. یاد رکھنا. اور جس کسی بائبل کے اندر یسوع مسیح نے ایک بات کی کہ وہ اتنی قریب کی مشابہت رکھتے ہوں گے اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر دیں. کیسے؟ قریب کی بالکل قریب کی. کیسے؟ اب بڑے سارے لوگوں کے یہ سوال تھے ان دنوں کے اندر کیا یہی 666 کی سٹیمپ ہے. لیکن جب ہم خدا کے کلام اقدس کو دیکھتے ہیں تو جو خدا کے روح سے مہر بند ہیں وہ پہلے اٹھا لیے جاتے ہیں. میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ واقعہ زمین پر دلہن کے اٹھائے جانے کے بعد ہوگا لیکن یہ چیزیں آج ہماری آنکھوں کے سامنے رونما ہونا شروع ہو چکی ہیں. اور لکھا جس آدمی میں حکمت ہے یا کوئی دنیاوی حکمت کی بات نہیں ہم کر رہے. یہ 9 نعمتوں میں سے ایک ہے. جس میں حکمت ہے وہ اس آدمی کا عدد جس کا عدد 666 ہے. یہ بڑی ساری ابھی اس کے اگر ڈیٹیل کے اندر ہم جائیں نا تو بڑے سارے حوالہ جات ہیں جو خدا کے نبی نے بیان کیا ہے. 666 کے تعلق سے خدا نے چاہا تو نیکسٹ سے اگلی دفعہ پھر شیئر کریں گے یہیں سے. یاد رکھنا ٹھیک ہے. پھر ہم 666 پر آگے جو ہے اس پر بات کریں گے کہ 666 ہے کیا. 666 یہ آدمی کا عدد ہے اور یہ کہاں پر پرفیکٹ بیٹھتا ہے اور یہ کہاں پر ہے شخص. میں نے رومیو بلکہ تسلیکیوں کے اندر آپ لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ شخص جو خدا کی ہیکل میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے یہ کس طرح ملے جلے رنگوں کے اندر ہے جو پوری دنیا کو اپنی طرف بلا رہا ہے کہ ہم سب ایک ہیں. وہ اپنے اتحاد کے اندر جو ہے شامل کرنا چاہتا ہے اور جتنے اس کے اتحاد کے اندر چلے جائیں گے خدا کا نبی کہتا ہے وہ ان سب کو فریب دے گا. یاد رکھنا. کیسے؟ بلیور جو ہوتے ہیں نبی کہتا ہے کہ وہ جب خدا کی کلام کی آواز کو سنتے ہیں تو وہ ان تنظیموں سے باہر آ جاتے ہیں. اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ چپ ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے بلکہ خدا کا کلام پہلے اعلان کر چکا ہے اس بات کے بارے میں
जितने लोग खुदा के पाक रूह से मोहर बांधे नहीं हैं उनके ऊपर हवान की छाप लग चुकी है। यस, एक तरफ खुदा के लोग जो है खुदा की मोहर से मोहर बांधे, और जिनके ऊपर खुदा की मोहर नहीं वो सब हवान के बुत की प्रस्तश करेंगे। यस, ये बाइबल कहती है। आमेन। मकासवा 13 बाब पूरा पढ़े, आपको मिलेगा कि पूरी दुनिया ताजब करती उस हवान के पीछे क्यों हो रही, क्योंकि वो उसी के पीछे चलती रही, लेकिन उस वक्त दुल्हन ठाई जा चुकी है। आमेन। इसलिए ये बात आज खुदा ने हमें मौका दिया है ताकि हम इस शख्स के बारे में जान सकें। और लिखा है जिसमें हिकमत है, ये अगली दफ़ा मैं आपको बताऊंगा इसकी पूरी डिटेल के साथ कि किस तरह इसका आदत 666 बनता है। सो खुदा आपको बरकत दे। जितने लोग इस मैसेज को यूट्यूब पर सुनते हैं, फेसबुक पर सुनते हैं, खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। God bless you, sir.